Hi, good morning, dear students as well as respected guardians. It is known to everyone we are suffering from COVID-19. Not we are but entire world is suffering from COVID-19. And due to COVID-19, all staffs from Vidyaniketan have tried to give a platform our students that they didn't miss any classes of any subjects. I am Dhruv Kumar from Vidyaniketan, Manar Vaishali. Today's topic is the Tiny Teacher, Class 7, Chapter 1 from the book An Alien Hand, and this book is also known as Supplementary Reader in English for Class 7, subject English. So, dear student, in this session, in this book, we have to read about the tiny teacher. About the tiny teacher, and this story is mainly based on an aunt. So we start together about this chapter. Though so very small, the aunt is unbelievably intelligent and hardworking. यद्यपि चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी भी होती है. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. वैसे तो चींटी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें जो सामान्य प्रजाति हैं वह है लाल और काला. Ants live in comfortable homes called ant hills. चींटियां जहां रहती है बहुत ही सजगता से, शांति से, आराम से, उसे हम ant hills कहते हैं. So here is a question: where did an ant live? Then answer is ant hills. Okay. Now we shall discuss about the tiny teacher in details. Let's start. Are you ready? Please listen carefully and don't board to listen any videos of any subjects, because it is very remarkable for all of you. Okay? Name the smallest insect you have seen and the wisest. आप सबसे छोटे कीड़े का नाम बताएं जिसे आपने देखा है, जो सबसे बुद्धिमान है. Is it fly? क्या यह मक्खी है? No, it isn't. नहीं, ये मक्खी नहीं है. It is the mosquito. क्या यह मच्छर है? नहीं, यह मच्छर नहीं है. No, not the mosquito. यह मच्छर भी नहीं है. Then it must be the worm. तब दूसरों ने कहा कि शायद यह रेंगने वाली कीड़ा हो सकती है. No one of these. इनमें से कोई नहीं है. It is the ant, the commonest and the smallest, but the just insect. यह चींटी है जो सबसे सामान्य, सूक्ष्म, छोटा, जब और सबसे बुद्धिमान है. The story of an ant's life sounds almost untrue. यद्यपि एक चींटी की जिंदगी की कहानी प्रायः मिथ्या सी लगती है, झूठ सी लगती है, but people have kept ants as pets. लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि लोग चींटियों को भी पालतू जानवर के रूप में पालतू करके रखते हैं, and have watched their daily behavior closely. और उसकी प्रतिदिन की जो व्यवहार है उसको बहुत ही नजदीक से देखते हैं. So we know a number of facts about this tiny teacher. इसलिए हम बहुत से तथ्य जानते हैं इस छोटे से प्राणी के बारे में, चींटी के बारे में. That is hard working and intelligent creature on this earth, जो इस पृथ्वी पर परिश्रमी और बहुत ही तेज मानी जाती है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अपनी
एंटीना और फिलर्स का उपयोग करती हैं बात करने के लिए जो उनके नजदीक से गुजर रहते हैं दूसरे चींटियों, यानी दूसरे चींटी से बात करने के लिए वह एंटीना और फिलर्स का प्रयोग करते हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. आप देख सकते हैं अपने घर के और आसपास के दीवारों पर वह ऊपर से नीचे आते जाते रहते हैं एक पंक्तिबद्ध तरीके से। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. और प्रत्येक चींटियां जो हैं सभी दूसरे चींटियों को जो विपरीत दिशाओं से आ रहे होते हैं उनके फिलर्स का स्पर्श करते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और ये अभिवादन किसके द्वारा करते हैं? तो वह करते हैं अपने फिलर्स और एंटीना को टच करते हैं। There are many kinds of ants. बहुत से चींटियों की प्रकार होती हैं। The commonest among them are the black or red ants. जिनमें जो सामान्यतः जो चींटियां पाई जाती है वह चींटियां होती है लाल और काला। We have seen them since we were children. हम उन्हें तब से देखते आ रहे हैं अर्थात उन चींटियों को जब हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे थे। But haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने उस वक्त चूंकि हम बच्चे थे, नादान थे, मासूम थे, उतना ध्यान नहीं दिया उन चींटियों के बिहेवियर। Where do they live? जैसे कि वह कहाँ रहता है, आखिर ये चींटियां हैं वो कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest और anthills. अपने आरामदेह गृह घोंसले या आंखिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं चींटियां? तो मैंने पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर के प्रारंभ में कि चींटियां आंखिल्स में रहा करती है। It has hundreds of little rooms and passages. जिसके पास सैकड़ों प्रत्येक चींटियों में सैकड़ों पैसेजेज होती है, नलियां होती हैं, गृह पास होती है, कमरे होते हैं। In some of these rooms the queen ant lays eggs. इनमें से कुछ ऐसे कमरे होती हैं जहां चींटियां वह अपने बच्चों का जन्म देने के लिए अंडा पहले देती है। In some of these rooms the queen ant lays eggs. और ये अंडे कौन देती है? तो रानी चींटियां। Others are nurseries for the young ones. अन्य चींटियां जो होती हैं जो रानी चींटी के द्वारा दी गई तो छोटे छोटे चींटी की जो जन्म है उसकी नर्सरी करते हैं, देखभाल करते हैं। Workers have their reserve quarters. जबकि चींटियों के भी कई हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमने पढ़ा कि रानी चींटी जब अंडे दे करके बच्चे को जन्म देती है तब वह जो चींटियां हैं जिस चींटी का नाम है नर्सरी करते हैं अर्थात वो केयर करते हैं उसकी, तो वो एक पार्ट हो गई। दूसरा होती है चींटियों में कि वर्कर होते हैं जो कार्य करते हैं और उनके लिए ये वर्कर्स चींटियों के लिए एक रिजर्व आरक्षित कमरा होती है। They spend most of their time searching for food. और वे अधिकांश अपने समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। कौन बिताते हैं अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में? वर्कर्स ant. Some rooms serve as storehouses for this food. और कुछ कमरे जो है वह भोजन की भंडारण के लिए रखी जाती है जहां सारी चींटियां के लिए भोजन इकट्ठा होती है और उसी कमरे से भोजन उन सारे चींटियों को दी जाती है। Soldiers have separate barracks. Soldiers have separate barracks. सेनाओं के लिए एक अलग सी बैरक होती है, छावनी होती है, रूम होती है जिसमें कि सेना चींटी रहा करती है। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. कोई भी जो वर्कर मजदूरी करने वाले अर्थात भोजन की तलाश करने वाले वर्कर चींटी जो हैं उन्हें कभी भी कोशिश नहीं होती है करने की और वो कभी कोशिश नहीं करते हैं कि वह जाए सेना के कमरे में। और इसके इतर सेना युक्त जो चींटियां हैं वो भी कभी बाहर नहीं जाती है भोजन की तलाश में। यानी सोल्जर का कार्य है गार्ड करना जबकि वर्कर का कार्य है फूड को सर्च करना। No worker or soldier or cleaner has ever harmed the crop.
कोई भी वर्कर, चींटी, सोल्जर चींटी, क्लीनर चींटी, वो ग्रब को, अर्थात ग्रब यहाँ एक जब अंडे की जो एक अवस्था होती है और जो दूसरी अवस्था में चली जाती है, जब अंडे से निकल जाती है, उसको ग्रब आंट्स कहते हैं। उसको कभी भी कोई वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। अतः आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एक चींटी की जिंदगी बहुत ही आरामदेह और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होती है। Instance is say a walk intelligently and bravely and never fights with other members of the group. प्रत्येक अपने कार्य के हिस्सों को बहुत ही बुद्धिमता तरीके से, बुद्धिमानी से और बहादुरी से बांट लेते हैं, और वे चींटियां कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते, झगड़ते नहीं। ये एक प्रकार से एक पहली पार्ट्स है इस चैप्टर की। इसके बाद मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको इसके जो अभी मैंने पढ़ाया इस पर आधारित कुछ कंप्रीहेंशन टेस्ट हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा, जिसकी मैं आपको आपके जो संस्थान के द्वारा दी गई लिंक है www.vidyaniketan.ac.in पे डाला जाएगा। और जो भी दिक्कतें होंगी आपको, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे नंबर जो इस संस्थान के द्वारा दी गई है, संस्थान में दी गई है, उसे आप निकाल सकते हैं और कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन अर्थात दूसरे पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें हम द टाइनी टीचर आंट के जो जिंदगी है उसके बारे में विस्तृत रूप से जो बची हुई कहानियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द क्वीन आंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स which she casts off before she begins to lay eggs. रानी चींटी में एक जोड़े डैने होते हैं, जो वह तोड़ देती है, हटा देती है, अलग कर देती है अपने शरीर से जब वह अंडे देना शुरू कर देती है। How many wings of an ant? There are 2 wings of ant. It means a pair of wings. Each hatch and become grubs. Grubs change into cocoons, and cocoons break to bring forth complete ants. प्रत्येक में एक सिलसिलेवार तरीके से चींटी की एक गतिविधियां होती है, और ये गतिविधियां जो है इस प्रकार से होती है कि जब अंडे को सेवा जाता है, हैच किया जाता है, तो यह ग्रब बनता है। ग्रब बदल जाता है कंकून में, और कंकून टूट के और चींटी की एक जो स्वाभाविक वास्तविक रूप है उसमें परिवर्तित कर देता है, और वह एक नन्हे से चींटी के रूप में उत्पन्न होती है। The life of an ordinary ant in the ant is a book which many of us seldom open. एक सामान्य चींटी की जिंदगी आंट हिल में इज अ बुक, पूरी तरह से पैक होती है, जिसमें कई हम में से जो है उसे खुली नगण्य आप उसे नहीं देख सकते। The queen is the mother of the entire population of the colony. The queen is the mother of the entire population of the colony. अर्थात पूरे कॉलोनी, गलियारे अर्थात उस कस्बे की जनसंख्या की मां आंट, जो क्वीन आंट होती है, उसे कहा जाता है। Here is the question, and a question arises: who is the entire population of the colony? Who is the mother of the entire population of the colony? That's the simple answer, and the simple answer is the queen ant. Okay, my dear students, I think any kinds of doubt has been cleared by me very easily, and I think you are the best charming dear students. Don't misguide it. The queen is the mother of the entire population of the colony. Please remember it. It is very important, very important questions for all of you. It lasts for about 15 years. Yet another question, and
दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि चींटी की जो जीवन आयु है, जिंदगी है, कितने वर्षों तक अनुमानित की गई है कि वह कितने वर्षों तक जी सकती है चींटी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चींटी की जो सामान्य जिंदगी होती है वह लगभग 15 वर्षों तक निर्धारित की गई है, लगभग 15 वर्ष तक, about 15 years, okay? It has a pair of wings, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एक चींटी की जो मेन डैने हैं वो एक जोड़े होते हैं। एक चींटी में कितने डैने होते हैं? एक जोड़े होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वह उस वक्त उस डैने को तोड़ देते हैं, अपने सर से अलग कर लेते हैं, अपने शरीर से अलग कर लेते हैं जब वह उड़ने के लिए जाते हैं ऊपर आकाश में, जिसको हम वेडिंग फ्लाइट कहते हैं। इसीलिए वेडिंग फ्लाइट करते हैं कि यहाँ चींटियां जो है रिप्रोडक्शन करते हैं विद मेल आंट से, और इसलिए इसको हम वेडिंग फ्लाइट करते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये जो फ्लाइट है, ये जो उड़ान होती है चींटियों के द्वारा, वह गर्मी ऋतु में होती है, जब हमारे वातावरण में काफी गर्मियां। द क्वीन लीव्स द नेस्ट and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. Queen leaves the nest. रानी चींटी क्या करती है? वह अपने घोंसले को छोड़ देती है और जाती है मिलने के लिए एक नर चींटी से, जिसको हम ड्रोन भी करते हैं, उससे हवा में ऊंचा। On its return to earth, वापस पृथ्वी पर आने के क्रम में it gets rid of its wings. वह अपनी डैनों से छुटकारा पाती है। वह क्या करती है? अपने डैनों से छुटकारा पा लेती है, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद वह कुछ नहीं करती है सिवाय अंडे देने। ओके, एग्स, हैच एंड ड्रॉप्स कम आउट। फिर क्या होती है? अंडे हैच की जाती है, सेवी जाती है, और ग्रब जो है उससे बाहर निकल आती है। सोल्जर्स गार्ड देम। जब ग्रब बाहर आ जाती है तो सोल्जर आंट जो है उस ग्रब की रक्षा करती हैं, देखभाल करते हैं कि इसमें को कोई नुकसान कोई ना पहुंचा पाए। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। उसके बाद जो दूसरी जिम्मेवारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टाइनी टीचर आंट की, उसमें है कि वर्कर जो मजदूर अर्थात बाहर से जंगलों में या इधर उधर घूम के भोजन की तलाश में जो भोजन लाते हैं और उसे सप्लाई करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड क्लीन देम अप, और उसका काम होता है फिर से उसकी साफ सफाई करना। And also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. वर्कर चींटी की ही ये फिर से कार्य होती है, जिम्मेवारी होती है कि उन्हें वह क्या करते हैं कि प्रतिदिन की जो हवा में अभ्यास कराने की होती है, उड़ने की अभ्यास, चलने की अभ्यास, सूर्य की प्रकाश प्राप्ति करने की, ये सारे कार्य जो हैं वही उनसे करवाते हैं। अर्थात वर्कर आंट इज नोन एज अ कोच of entire ants. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 सप्ताह के बाद वह ग्रब कॉकून बन जाती है। वह ग्रब क्या बन जाती है? कॉकून बन जाती है, और लाइव विदाउट फूड, और बिना भोजन के वो पड़े रहते हैं, या बिना यूं कहे तो बिना एक्टिविटी गतिविधि के वह पड़े हुए रहते हैं 3 सप्ताह तक और अधिक। यानी जब ग्रब बाहर आते हैं 2 या 3 सप्ताह के बाद, फिर वो 3 सप्ताह तक वह पूरी तरह से बिना कोई मूवमेंट किए बगैर, बिना कोई हलचल किए बगैर पड़े हुए रहते हैं जमीन।
देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट ants appear। उसके बाद कोकून जो है टूट जाती है और एक पूर्ण रूपेण चींटियों का इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जब चींटियां पूरी तरह से अंडों से बाहर हो जाती हैं, तब यह समय होता है उन चींटियों के लिए जो काफी महत्वपूर्ण होता है कि उसको सिखलाया जाए व्यवहार, उसकी प्रशिक्षण दिया जाए उसके हर एक कार्यकलापों के बारे में। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई जन्मी चींटियां हैं वह अपनी कर्तव्यों का पूरी सीख जो है लेती हैं बूढ़े चींटियों से। जैसे वो चींटियां वर्कर्स होती हैं, उसके बाद सोल्जर्स चींटियां हैं, बिल्डर्स चींटियां हैं। तो जब सिखाने की और प्रशिक्षण देने की बात आती है तो जो नए जन्मे चींटियां हैं वह पुराने अर्थात वृद्ध चींटियों से बहुत सा कार्य सीखते हैं। जैसे कि उनको वर्कर चींटियां हैं वो सिखलाते हैं कि कैसे आपको यदि यह कार्य दिया जाए कि आपको भोजन की तलाश करके और भोजन लाना है यहाँ, तो वर्कर उनको सिखलाएंगे। यदि सोल्जर कि अगर ग्रब एक से ग्रब में आते हैं तो उसको गार्ड कैसे करना है ये आपको सोल्जर चींटी सिखलाएंगे। यदि बिल्डर्स है, बिल्डर्स कमरों बनाना है या शेल्टर रूम बनानी है तो इन सबों के बारे में आपको बिल्डर्स बताएंगे। क्लीनर्स कि कैसे आपको नए जन्मे चींटियों को उसकी साफ सफाई रखनी है तो ये आपको क्लीनर्स बताएंगे। आफ्टर a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work। और कुछ ही सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद वह छोटी सी चींटियां तैयार हो जाती है जाने के लिए बाहर इस बड़े से संसार में कार्य करने के। An ant is a home not only for ants but also for some other creatures such as beetles, larger breeds of ants and the green fly। एक चींटी का घर आंट हिल सिर्फ एक चींटियों का घर नहीं है। एक चींटी की घर सिर्फ आंट हिल ही नहीं है, वरन यह अन्य दूसरे प्रजातियों प्राणियों के लिए है जो चींटी के ही प्रजाति से मिलते जुलते हैं, और वे हैं बीटल्स, लेजर ब्रीड्स और ग्रीन फ्लाई। इनके भी वो क्या है, इनके भी वे एक प्रजाति है जो आंट हिल में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों ये चींटियां चाहती हैं कि वह एलियन क्रीचर की तरह रहें अपने घोंसले में? For several reasons। इसके कई कारण हैं, ठीक ना। Some give off a smell pleasant to the ants। कुछ जो है सुगंध देते हैं जो काफी सुखद और अच्छी सुगंध होती है चींटियों के लिए। Senses other give sweet juices। कुछ मधुर रस की एक अनुभूति देते हैं। And some are just pets of playthings like eats and dogs to human beings। Some are just pets of playthings like cats and dogs to human beings। और कुछ जो है वह पाले भी जाते हैं, चींटियां भी जो है पाली जाती हैं, जैसे वह बिल्लियों और कुत्तों की तरह खेला करते हैं मानव प्राणी के साथ। द ग्रीन फ्लाई इज द ants cow। जैसे हम लोगों के लिए गाय है जो कि गाय मधुर दूध देती है, ठीक उसी तरह से चींटियों के लिए ग्रीन फ्लाई गाय के रूप में जानी जाती है। द ants train it to give honey to। चींटियां जो है इन्हें प्रशिक्षित करती हैं ताकि वह उन्हें शहद दे सके। जैसे
गाय हम लोगों को दूध देती है, ठीक उसी तरह से आंट जो है ग्रीन फ्लाई को प्रशिक्षित करती है, जिससे कि है वह उनके लिए शहद दे सके। विद द टच ऑफ द एंटीना, और ये हनीड्यू देते कैसे हैं, तो उनके एंटीना अर्थात फीलर्स को स्पर्श करके दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे वैसे ही दूध देते हैं जैसा हम लोगों को गाय दूध देती है। जैसा हम लोगों को गाय दूध देती है, ठीक उसी तरह से वे ग्रीन फ्लाई जो है आंट को हनीड्यू देते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज ants have? क्या मानव प्राणी सीखे होते हैं जितना चींटियां पहले ही सीख चुकी होती है? Perhaps they have, शायद मानव प्राणी उतना सीख चुके होंगे, but they haven't put their learning to good use. लेकिन वे अपनी अधिगम को, अपनी सीख को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher. इस प्रकार से हम मानव प्राणी कई महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं इस छोटे से शिक्षक अर्थात टाइनी टीचर। यहाँ किससे कहा गया है, तो आंट को कहा गया है, और इससे हम बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। और वो सीख सकते हैं, कौन कौन से काम सीख सकते हैं, वो इस प्रकार है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना हम ये चींटी से सीख सकते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य करने की अवधारणा, ये हम सीख सकते हैं। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, ये भी हम उनसे सीख सकते हैं। टाइनी टीचर एज एन आर्ट। क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में भी हम इससे सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमें स्वच्छता के बारे में सिखाती है। केयर फॉर द यंग वंस, छोटे नन्हे से चींटियों के देखभाल के बारे में भी सीख सकते हैं। एंड एबव ऑल ए फैमिली लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लाई। और उपर्युक्त हर एक कार्य को हम सीख सकते हैं निष्ठापूर्वक, जो इस जमीन अर्थात पृथ्वी पे रहते हैं। That's all, my dear student. Thus end of this chapter, and I hope you will learn it very conceptually. If you need doubt, you can query on this website www.vidyaniketan.ac.in. Thanks so much.